ایک ناپاک اور غلیظ عورت جس پر بدبختی غالب آ گئی، اور اس بدبختی نے اسے دنیا کی بدترین، ناپاک ترین اور غلیظ ترین عورت بنا دیا۔ یہ بدبخت عورت اپنی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری اور جہنم کی سردار اور جہنم کی شہزادی بن گئی۔ یہ ان چند خواتین میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آگ میں داخل ہونے کے صریح وعدے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ وہ خاتون ہے جسے اللہ کی کتاب میں کسی فضیلت یا عزت کے بجائے ایک ابدی لعنت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یادگار بنایا گیا، جو تکبر اور سرکشی، کفر اور فساد کی علامت، اور اسلام اور نبی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی عداوت اور فتنہ کی سردار تھی۔ وہ تاریخ کے صفحات میں محض ایک عام عورت نہیں، بلکہ ایک سیاہ کارکردگی کا حامل کردار ہے، جس نے کفر و ایمان، حق و باطل کی کشمکش میں اپنا نام درج کروایا۔ ایک ایسی عورت جو فریب اور تسلط کی نمائندہ تھی، جس نے اپنی چالاکی اور طاقت کو توحید کی دعوت کو ابتدائی مرحلے میں ہی کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا، اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اندھی جنگ میں سب سے آگے تھی۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اسلام کے دشمن کیسے کام کرتے ہیں، تو آپ کو ان کے پہلے نمونے اور ان سے پہلے آنے والے کفار اور اس ناپاک عورت کے بارے میں جاننا ضروری ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کافر عورت ان پہلے لوگوں میں سے تھی جنہوں نے وہ چالیں استعمال کیں جو آج بھی اسلام کے مخالفین استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اپنے الفاظ کو قاتل ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس عورت نے اپنے کافر شوہر ابو لہب کو اسلام کی دعوت کو رد کرنے پر اکسایا، اور اس نے قریش کے معاشرے میں اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر مومنوں کو تکلیف پہنچائی اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام ہوئی اور خسارے میں رہی۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک فتنہ اور شر تھی، یہاں تک کہ مبالغہ آرائی میں کہا جا سکتا ہے کہ شیطان بھی اس کی چالاکی، اس کے شدید فساد اور کفر کے سامنے حیران کھڑا ہو سکتا تھا۔ تو پیارے دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ یہ ناپاک اور جہنمی عورتوں کی سردار، جہنم میں عورتوں کی شہزادی جمیل کون تھی، اور کس طرح اس ناپاک عورت نے اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے تیار کیے، اور اسلام کی سب سے بڑی دشمن کیسے بنی، اور اس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اور اس کے شوہر نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور ان دونوں خبیث لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ان ایمان افروز اور عبرتناک معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے مہربان ناظرین آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، اور چینل دانیال وائس کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ مجرم عورت جمیل مکہ کے سردار کافر گھرانوں میں سے ایک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ عروہ بنت حرب بن امیہ تھی، قبیلہ قریش سے تھی، جو شہر کی سرداری کے ستونوں میں سے ایک کی بیٹی اور بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ طاقت اور خاندانی شرافت سے بھرے گھر میں پلی بڑھی، لیکن اس عظمت کی اخلاقیات اسے ورثے میں نہیں ملی۔ وہ بچپن سے ہی متکبر، باغی، شدید خواہش مند اور سخت مزاج تھی، اور سب پر برتری حاصل کرنے کی خواہش اس کے سینے میں کروٹیں لیتی رہتی تھی۔ اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں اس نے قریش کے ایک بڑے آدمی سے شادی کی۔ وہ تھے ابو لہب بن عبدالعزی، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ایک دولت مند تاجر تھے، جن کی مثال جاہ و مال میں دی جاتی تھی۔ اس عورت کو ابو لہب میں وہی کچھ ملا جس کی وہ تلاش میں تھی، ایک دولت جو اس کی عیش و عشرت کی بھوک کو سیراب کرے، اور ایک اقتدار جو اس کے تسلط کی خواہش کو پورا کرے۔ اس نے اس دولت کا فائدہ اٹھایا اور مکہ کی سب سے مشہور اور نمایاں خواتین میں سے ایک بن گئی، نہ کسی فضیلت یا عقل کی وجہ سے، بلکہ اپنی زبان کی تیزی اور اپنی خراب نیت کی وجہ سے۔ جمیل کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ قریش کی خواتین کے درمیان اثر و رسوخ کا ایک جال چلاتی تھی، اکساتی تھی، افواہیں پھیلاتی تھی، تحریف کرتی تھی اور فتنے کے بیج بوتی تھی۔ وہ کفر اور فساد میں سر تھی۔ لوگوں نے اس کی تند و تیز زبان میں ایک ایسی بے رحمی اور ناقابل برداشت غرور محسوس کیا جو رحم کو نہیں جانتی تھی۔ وہ اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ وہ صرف ایک چیز سے ڈرتی تھی، یہ کہ وہ اپنا اقتدار کھو دے، اس کے گھر کی حیثیت کم ہو جائے، اور بنو امیہ سے بنو ہاشم کے حق میں سرداری چھن جائے۔ اور جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا اعلان کیا، تو اس عورت نے سمجھ لیا کہ یہ نیا دین صرف قریش کے معبودوں کے لیے ہی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے سماجی نظام کو بھی خطرہ ہے جس سے وہ فائدہ اٹھانے والوں میں سے ایک تھی۔
इसलिए ये फाजिर औरत अपनी तमाम तर ताकत और साजिश के साथ इस्लाम और नबी इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो गई। और मक्का में एक दिन वो खबर आई जिसने शहर के सुतूनों को हिला दिया और कुरैश के रहनुमाओं के तकब्बुर को झंझोड़ दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अल्लाह के महबूब, मक्का में खुलेआम ऐलान करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। बहुत से लोगों के लिए यह वाक़या हैरानकुन था, लेकिन उम्मे जमील के लिए यह महज एक ऐलान नहीं था, बल्कि एक जलजला था जिसने जाहिलियत के तख्त को खतरे में डाल दिया और ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर उलट दिया। वो मोहम्मद के नसब को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि वो बनु हाशिम से हैं, जो कुरैश की मुअज़्ज़ज़ शाख और बनु उमैया के तारीखी हरीफ हैं। अगर लोगों ने उनकी तस्दीक की तो क्या उसका मतलब ये ना होगा कि उसके घर की हैसियत खत्म हो जाएगी, उसका इक़्तिदार मिट जाएगा और बनु उमैया सरदारी के तख्त से गिर जाएंगे। उसका मसला पैगाम की सच्चाई या झूठ से नहीं था, बल्कि उस पैगाम में मौजूद उसकी हैसियत के लिए बराह रास्त खतरा से था। ये औरत इस्लाम को सिर्फ एक मजहबी जलजला नहीं, बल्कि एक समाजी जलजला समझती थी। वो समझती थी कि ये उस दुनिया को तबाह कर देगा जिसे उसने गुरूर और ऐशो इशरत पर बनाया था, और लोगों को मुसावात, इंसाफ और एक हक देगा जिसके लिए वो सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। और इस तरह उम्मे जमील एक बाअसर औरत से इस्लाम की एक शदीद दुश्मन बन गई, जो अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ एक शदीद मुहिम चला रही थी। लेकिन अबू लहब अपनी खुली मुखालफत के बावजूद उसके शर की इंतहा को नहीं पहुंचा था। इस औरत ने सिर्फ इस्लाम से इनकार पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को हर तरह से इस्लाम को तबाह करने के लिए वक्फ कर दिया। इस फाजिर औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की। वो अपने कबीले और आम लोगों के सामने नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मस्ख करना चाहती थी। इसीलिए उसने हर उस शख्स को करीब किया जो नफरत फैलाने की सलाहियत रखता था। उसकी बातें जहरालूद थीं, गोया एक जहरीला सैलाब जो मक्का की गलियों में सरसराता, महफिलों में सरगोशियां बनकर बिखरता और खाना काबा के अतराफ उछाला जाता, फितने की चिंगारी को शोला बनाता और दिलों में अदावत की तपिश बढ़ाता। इसकी दुश्मनी महज मजहबी न थी, बल्कि वजूदी थी। इस औरत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसे सच्चे रहबर को देखा जो जाहिलियत के कायम शुदा निज़ाम को ढा देगा और उन ताकतों के तवाज़ुन उलट देगा जो उसके फ़ायदे में थे। ये बदकार औरत अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थी, मगर अफसोस कि इब्तिदा में उसने ये गुमान किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ज़्यादा देर कायम न रहेगी और मानने वाले पीछे हट जाएंगे। मगर हकीकत चूंका देने वाली थी। इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। दिल नूरे इस्लाम से मुनव्वर हो रहे थे और ये रोशनी हर लम्हा फैलती जा रही थी। जब उस नापाक औरत ने देखा कि उसकी तमाम साजिशों के बावजूद लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और दीन आगे बढ़ रहा है, तो उसकी नफरत अपनी इंतहा को पहुंच गई। तब वो पूरी शिद्दत के साथ खुलकर दुश्मनी पर उतर आई, यहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ महाज बनाने वालों में पेश पेश हो गई। उसने कुरैश की औरतों में अपने असर और रसूख को झूठ घड़ने, इल्ज़ाम तराशी को आम करने, अफवाहें फैलाने और अवाम के दिलों में खौफ बिठाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अल्फाज पूरे मक्का में आग की तरह फैलते थे, जैसे लकड़ी में शोला लग जाए। उम्मी जमील ने अपनी तेज जबान और समाजी हैसियत से फायदा उठाकर झूठ और मन घड़त प्रोपेगेंडे का जाल बुना, जिसके जरिए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी दावत और मुसलमानों पर हर तरह के बेबुनियाद इल्जामात आयद करती ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। उसने झूठ घड़े, वसवसे फैलाए और बहतान तराशे। कभी कहा पागल हैं, कभी जादूगर, कभी झूठा, कभी मक्का के निज़ाम का दुश्मन। हालांकि खुद वो झूठी, फासिका और बहतान लगाने वाली थी। अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाजत फेंके। एक ऐसा मंजर जिसमें ऐसी बेहसी थी जिसका मुकाबला सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत ही कर सकती है। इन दोनों फाजिरों ने एक लम्हे के लिए भी सबसे पाकीज़ा मकामात को नापाक करने और ज़मीन और मक्का के सबसे सच्चे इंसान की तौहीन करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसके बावजूद इस्लाम की दावत बढ़ती रही और मोमिन बढ़ते रहे और दिल हक पर खुलते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से। और यही वो चीज़ थी जो उम्मे जमील को उसकी हद से बाहर निकाल रही थी। इसी तरह जब उम्मे जमील की तमाम तर कोशिशें और तमाम तर साजिशें नाकाम हो गईं और बहतान मुफीद नहीं रहा,
अब शैतान ने उम्मे जमील पर एक और वार किया और उम्मे जमील को एक और रास्ता दिखाया, और यहां शैतानी ख्याल पैदा हुआ, कत्ल। हाँ, उसने अपने हाथ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को खत्म करने का फैसला किया था। उसने ऐसा ही इरादा किया और वहम किया। वो कोई मामूली मुखालिफ नहीं थी, बल्कि वो हर लिहाज से इस्लाम के सबसे शदीद दुश्मनों में से एक थी। यहां तक कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उसे कुरान में बुराई, मजम्मत और शदीद अजाब और तबाही के साथ याद करने के लिए मुंतखब किया, ना कि किसी फजीलत के तौर पर, बल्कि अब्दी लानत के तौर पर, लानत ज़दा लोगों की फहरिस्त में। और इस्लाम के फैलाव के साथ उम्मे जमील और उसके शौहर की सरकशी बढ़ गई। लेकिन वो जो भी करते, अल्लाह अज़्ज़ वजल का वादा टूट नहीं सकता था, और उसका हक शिकस्त नहीं खा सकता था, और उसके लश्कर मगलूब नहीं हो सकते थे। फिर आसमानी फैसला कुन वो वक्त आया। अल्लाह की किताब कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरत नाजिल हुई, जिसमें ज़मीन के बादशाहों या रूम के हुक्मरानों का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें दो काफिर मर्द और औरत का जिक्र हमेशा के लिए महफूज किया गया है, जिन पर अबदी वाज़े खसारे का हुक्म दिया गया है। एक दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और अहले कुरैश को पुकारा और सच्चाई और अमानत से भरी हुई आवाज़ में उनसे कहा, ए कुरैश के गिरोह, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि एक घोड़ों का दस्ता वादी में तुम पर हमला करने का इरादा रखता है, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हमने आप पर कभी झूठ का तजुर्बा नहीं किया है, यानी आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो जो ख्वाहिश से नहीं बोलते और जो लोगों पर मेहरबान और रहीम है, मैं तुम्हें एक शदीद अजाब से पहले डराने वाला हूं। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, बस मुझ पर ईमान लाओ। और आपके कलाम का मतलब ये था कि जो ईमान लाया तो उसके लिए जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और जिसने कुफ्र किया तो उसके लिए आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह, तेरी जन्नत, तेरी रहमत और तेरी सबसे बड़ी रजामंदी जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब व किताब और बगैर किसी अजाब के, तेरी रहमत से, ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले। जब लोगों ने यह कलाम सुना तो खामोशी छा गई और सब खामोश हो गए। ये ऐलानिया दावत का आगाज था, और यहां शैतान अबू लहब के सीने में दबी हुई नफरत फट पड़ी और वो गुस्से से चलाया, तबाह हो जाओ तुम सारा दिन, क्या तुमने हमें इसी के लिए जमा किया था? फिर ये लानती गुस्से में आकर चला गया तो अल्लाह की तरफ से रब्बानी जवाब तेजी से और लर्जा देने वाला आया। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन दात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। सिर्फ 5 आयात की एक सूरत, लेकिन उसने एक मर्द और औरत के चेहरे पर रहमत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, जिन्होंने हक के खिलाफ तकब्बुर किया और अल्लाह अज़्ज़ वजल के नूर को बुझाने के लिए हर तरह की कोशिश की। तो ये हुक्म अल्लाहुल मुल्क, साहिबुन नूर और आसमानों और ज़मीन के बादशाह और दुनिया और आखिरत के रब की तरफ से आया। और सूरत में जो सबसे ज्यादा नुमाया है वो कातिल औरत, जिसका फैसला कुन वस्फ बयान है, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। और उसकी बीवी भी लकड़ियां उठाने वाली, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। ये कोई मामूली वस्फ नहीं है, बल्कि एक मुरक्कब तस्वीर है जो उम्मे जमील के किरदार को एक लफ्ज में समो देती है। वो पत्थर और कांटे उठाती थी ताकि वो अशरफुन्नास और अकरमुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाए। जैसा कि ये फाजिर लोगों के दरमियान बातें मुंतकिल करती थी और फितना और फसाद की आग भड़काती थी। और जब उसे उस कुरान सूरत के नुज़ूल का इल्म हुआ तो वो गुस्से से भड़क उठी और उसकी बेचैनी में इजाफा हो गया। उसने समझ लिया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उसका और उसके हमेशा जहन्नम में जलने का हतमी फैसला और अंजाम नाजिल कर दिया है। तो वो कुरैश के लिए मज़हिका बन गई, यहां तक कि उनके सरदारों ने भी उसका मजाक उड़ाया। और उस फाजिर औरत के पास रद्द अमल के तौर पर सिर्फ तशद्दुद ही था। और एक दिन उस औरत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिदुल हराम की तरफ लपकी। उसने सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हैं। वो उस पत्थर से नबी पाक को कत्ल करना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरत यह थी कि उसके मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के लम्हे नबी पाक वहां उसकी आंखों के सामने बैठे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं देख सकी और ना ही उन्हें पहचान सकी। हाँ,
अल्लाह ने उसकी बीनाई के नूर को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा लिया था, तो उसकी आंखें रसूल अल्लाह को नहीं पहचान सकी, हालांकि आप बैठे हुए वाज़े और नुमाया थे। गोया ये एक पैगाम था कि जिस तरह उसके दिल का नूर बुझ गया था, इसी तरह उसकी आंखों और बीनाई का नूर भी बुझ गया था। तो वो ना अपनी आंख से देख सकी और ना अपने दिल से, वो दिल और आंख से अंधी हो गई, और हम उस अंधेपन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो वो गुस्से से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुई और उनसे कहा, ए अबू बकर, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैं उसे कत्ल करने आई हूं। वो जिसने अपने जादू और झूठ से हमारे दरमियान तफरीक डाली, और वो जिसने मुझे और मेरे शौहर को बदनाम किया है। अबू बकर ने उसे सुकून से देखा, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पहलू में उनके सामने बैठे थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसकी बीनाई को फेर दिया था, तो वो उन्हें नहीं देख सकी। उम्मे जमील मुश्तइल हो गई और उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा और उसने पत्थर अपने हाथ से फेंक दिया, फिर तेजी से चली गई और मायूसी उसके दिल और रूह को भर चुकी थी। ये मुजरिम औरत अपने अंदर जानती थी कि सूरह अल-मसद सिर्फ पढ़े जाने वाले अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये एक फैसला कुन रब्बानी हुक्म था, जिसमें कोई वापसी नहीं थी, जिसमें उसके अंजाम का ऐलान किया गया था। वो सूरह उसके 5 फैसला कुन अल्फाज के साथ उसके और उसके शौहर, उनके माल और उनके अंजाम पर एक आफत थी, क्योंकि उसने वो सब कुछ तबाह कर दिया जो उन्होंने हैसियत, जाह और असर और रसूख से बनाया था। उन दोनों ने उस दीन को रोकने के लिए हर रास्ता आजमाया, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी मर्जी से ज्यादा ताकतवर है और अपने इरादे से ज्यादा देरपा है। अबू लहब और उम्मे जमील की नफरत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि ये घनाउने अफाल, मुहासरा, भूख और फाजिर जुल्म था। अबू लहब उस जालिमाना समाजी और इक्तिसादी बाइकॉट के रहनुमाओं में से एक था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कौम और मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया था, जिसमें मुसलमानों ने 3 साल तक ऐसा दर्द और भूख बर्दाश्त की जो किसी इंसान के बस में नहीं था। इसके बावजूद अल्लाह के फजल, मदद और हिमायत से वो कमजोर नहीं हुए और न पीछे हटे, और नबी की दावत और इस्लाम का पैगाम नहीं रुका। और इसके बजाय कि कुरैश के काफिरों की तरफ से मतलूबा बाइकॉट मुसलमानों के अज़्म को तोड़ने में कामयाब होता, अबू लहब और उम्मे जमील की सख्ती उनकी तबाही को तेज करने का सबब बनी, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सच्चे वादे में सूरह अल-मसद में आया है। तो अजाब उनके लिए सिर्फ आखिरत में नहीं था, बल्कि दुनिया में भी शुरू हो गया, क्योंकि मुजरिम काफिर अबू लहब पर एक खबीस मुताद्दी बीमारी नाजिल हुई, जिसकी वजह से लोग उससे दूर भागने लगे। यहां तक कि अहले कुरैश ने भी उसे छोड़ दिया। लोग उससे दूर भागते थे और उसके करीब आने से नफरत करते थे। ये मुजरिम काफिर दर्द और तकलीफ में तड़पता रहा। उसका जिस्म बगैर किसी देखभाल करने वाले और दफन करने वाले के खुले आसमान तले छोड़ दिया गया। किसी ने भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं की, बीमारी के खौफ या शर्मिंदगी की वजह से। और आखिर में उसके खानदान और सबसे करीबी लोगों ने कुछ लोगों को पैसे देने पड़े ताकि वो उस लाश से छुटकारा हासिल करे। तो उन्होंने उसे बगैर किसी इज्जत के उठाया और एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे पत्थरों से ढक दिया। इस तरह इसका दर्दनाक अंजाम हुआ। इसकी दौलत, इसका इक़्तिदार और इसका तकब्बुर, ये सब एक लम्हे में गायब हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का दीन बाकी रहा, और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह का दीन गालिब है, अल्लाह का दीन बाकी है, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने उसे चाहा, और ये बाकी रहेगा चाहे काफिर कुछ भी चाहे। ये मुजरिम समझता था कि वो मक्का के सरदारों में से है, लेकिन उसे हकीर और जलील करके फेंक दिया गया, जैसे कोई गली सड़ी लाश फेंक दी जाती है। तो उसके सबसे करीबी लोग भी उसके करीब नहीं आए। उन्होंने इस्लाम की मौत चाही, तो अल्लाह ने उन्हें जलील करके मौत दी और अपने दीन और उसके लोगों को इज्जत के साथ बाकी रखा। ए अल्लाह, हमें इस्लाम की इज्जत के साथ इज्जत दे। और अबू लहब की मौत के बाद उसके घर की आवाज धीमी पड़ गई और उसकी चमकमान पड़ गई, और उम्मे जमील अकेली ही अंजाम के साये का सामना करने के लिए बाकी रही। वो मुतकब्बिर औरत जिसने एक दिन वहम किया था कि पूरा मक्का उसके असर और रसूख और उसकी तुंद तेज जबान के ताबे है, अचानक गैर रहम, नफरत ज़दा और खारिज करदा बन गई। वो अब वो औरत नहीं रही जिससे मशवरा लिया जाता था और जिससे डरा जाता था, बल्कि वो सिर्फ एक ऐसी औरत की गमगीन याद बन गई जिसे उसके तकब्बुर और उसकी तेज जबान ने धोखा दिया। लोगों के दरमियान सरगोशियां गूंजने लगीं कि उस पर और उसके शौहर पर सूरह अल-मसद की आयात पूरी हो गई हैं,
और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लानत उस पर नाजिल हुई है जिसने उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा और मोमिनों पर जुल्म किया। और इस सब के बावजूद फाजिर उम्मे जमील पीछे नहीं हटी। उसने उस अंजाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जो उसके लिए लिखा गया था, और वो मक्का की गलियों में नफरत फैलाती रही और कीना बखेरती रही जैसा कि वो हमेशा करती थी। तो उस पर हमारे रब अज़्ज़ा वजल का दर्दनाक अजाब और अबदी आग का कौले हक साबित हो गया। लेकिन जब जमाना उसके लिए तवील हुआ तो उसने रहम नहीं किया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसकी सेहत छीन ली और उसकी चमक बुझा दी और उसे गुरूर की बुलंदियों से जिल्लत और झूठ के गड्ढे में गिरा दिया। कमजोरी, मायूसी, तन्हाई और जिल्लत, और एक अंजाम जिसके बारे में दर्दनाक रिवायतें गर्दिश करती हैं। कुछ रिवायतें जिनकी सदाकत हमें नहीं मिली है कहती हैं कि वो एक अजीम चट्टान के नीचे कुचल दी गई, और एक और रिवायत बयान करती है कि वो अपनी गर्दन में रस्सी से दम घटकर मर गई। और हकीकत को अल्लाह बेहतर जानता है। गोया सूरह अल मसद के अबदी अल्फाज उसकी तमाम तफसीलात के साथ उस पर पूरे हो गए थे। उसने अपना अंजाम लानत की रस्सी से खोया, जैसा कि उसके फसाद, उसके कुफ्र और उसके घनाउने फेल को कयामत तक बेनकाब करने वाली एक अबदी आयत में खोया गया है। अबू लहब और उम्मे जमील दीन इस्लाम के सबसे शदीद दुश्मनों में से थे, लेकिन वो दूसरों की तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इंसाफ से फरार नहीं हो सके, न दुनिया में और न ही आखिरत में। ये तारीख के औराक में सिर्फ एक सादा सी खातून नहीं, बल्कि एक सियाह रूह किरदार है जिसने ईमान और कुफ्र, हक और बातिल की उस अजीम जंग में अपना नाम हमेशा के लिए महफूज कर लिया। ये वो औरत थी जो धोखे और गलबे की अलामत बनी, जिसने अपनी मक्कारी और ताकत को तौहीद की दावत को इब्तिदाई मरहले ही में कुचलने के लिए इस्तेमाल किया, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ छेड़ी गई इस अंधी जंग में सबसे आगे खड़ी थी। आज अगर आप समझना चाहते हैं कि इस्लाम के दुश्मनों के तरीक़ेकार क्या हैं, तो आपके लिए उनके अव्वलीन नमूने यानी कुफ़ार मक्का और उस नापाक औरत उम्मे जमील के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है। ये काफिर औरत उन अव्वलीन लोगों में से थी जिन्होंने वही हरबे इस्तेमाल किए जो आज भी इस्लाम के मुखालिफीन इस्तेमाल करते हैं, और वो पहली ख़वातीन में से एक थी जिसने अपने अल्फाज को जहरीले हथियारों में बदल दिया। उसने अपने काफिर शौहर अबू लहब को इस्लाम की दावत को रद्द करने पर उकसाया और कुरैश के मुआशरे में अपने मर्तबे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अहले ईमान को अजियत दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के खिलाफ गुस्ताखी की। मगर वो अपने नापाक इरादों में नाकाम रही और खसारे में डूब गई। वो कोई मामूली औरत न थी, बल्कि एक खतरनाक फितना और बुराई का पहाड़ थी। यहां तक कि अगर कहा जाए तो शैतान भी उसकी अय्यारी, उसके गहरे फसाद और कुफ्र के सामने हैरान रह जाता। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये जहन्नमी ख़वातीन की सरदार उम्मे जमील कौन थी। उसने इस्लाम को मिटाने के लिए कौन से घनौने मंसूबे बनाए, कैसे इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन बनी, उसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन सी तकलीफें पहुंचाईं, और उसके शौहर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इन दोनों मियाँ बीवी के बारे में क्या फरमाया, और इन दोनों शरीर इंसानों का अंजाम आखिर क्या हुआ। इन ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ हक़ाइक़ को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिए। ये मुजरिम औरत उम्मे जमील मक्का के सरदार और काफिर घरानों में से एक घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो उर्वा बिनते हर्ब बिन उमैया थी, जो कबीला कुरैश से थी। शहर के एक मुअज़्ज़िज़ सरदार की बेटी और बनु उमैया के सरदार अबू सुफियान की बहन थी। वो ताकत और ख़ानदानी शराफत से लबरेज माहौल में पली बढ़ी, मगर इस रुतबे की अखलाकियात उन्हें विरसे में ना मिली। वो बचपन से ही मगरूर, सरकश, इंतहाई ख्वाहिशात रखने वाली और सख्त दिल थी, और हर किसी पर बरतरी हासिल करने की हवस उनके सीने में हमेशा मौजज़न रहती थी। जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम में ही उनकी शादी कुरैश के एक बड़े शख्स अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब से हो गई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और एक मालदार ताजिर थे, जिनका शुमार दौलत और शान शौकत में मुमताज़ लोगों में होता था। इस औरत को अबू लहब में वो सब कुछ मयस्सर आया जिसकी वो तलबगार थी। एक ऐसी सरवत जो उसकी ऐश पसंदी की भूख मिटा सके, और एक ऐसा इख्तियार जो उसके तसल्लुत की ख्वाहिश को पूरा करे। उसने इस मालो दौलत का भरपूर फ़ायदा उठाया और मक्का की मारूफ और नमूद नुमाइश करने वाली ख़वातीन में से एक बन गई, ना किसी नेकी या दानिश की वजह से, बल्कि अपनी तेज़ ज़बान और बदतीनती की बदौलत।
उम्मे जमील कोई मामूली खातून न थी, बल्कि वो कुरैश की खवातीन के दरमियान अपना असर और रसूख चलाती थी। वो भड़काती थी, झूठी अफवाहें फैलाती थी, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती थी और फसाद के बीज बोने का काम करती थी। वो कुफ्र और फसाद की सरकर्दा थी। लोगों ने उसकी तेज और तल्ख जबान को आज़ादी दे रखी थी। उसके अंदर एक ऐसी बरहमी और नाकाबिले बर्दाश्त गुरूर पाया जाता था जो रहम जैसे जज्बे से नाआशना था। वो अल्लाह ताला से नहीं डरती थी, बल्कि सिर्फ एक चीज का खौफ उसके दिल में था, कहीं वो अपना इक़्तिदार न खो बैठे, उसके घर की इज्जत कम ना हो जाए और बनु उमैया से सरदारी छिनकर बनु हाशिम के हक में ना चली जाए। जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का ऐलान किया तो उस औरत ने फौरन समझ लिया कि ये नया दीन महज कुरैश के बुतों के लिए खतरा नहीं, बल्कि इस समाजी निज़ाम के लिए भी खतरा है जिससे वो खुद फायदा उठा रही थी। चुनाचे इस फाजिरा औरत ने अपनी पूरी ताकत और साजिशों के साथ इस्लाम और नबी इस्लाम के खिलाफ सफाराई की। मक्का में एक दिन वो खबर पहुंची जिसने शहर की बुनियादों को हिला कर रख दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अल्लाह के महबूब, खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर रहे हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। बहुत सौ के लिए ये हैरत का बायस था, मगर उम्मे जमील के लिए महज ऐलान नहीं, एक जलजला था जिसने जाहिलियत के तख्ता को डगमगा दिया और ताकत के तवाजुन को उलट कर रख दिया। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से खूब वाकिफ थी। आप बनु हाशिम से थे जो कुरैश की मुअज़्ज़ज़ शाख और बनु उमैया के तारीखी हरीफ थे। अगर लोग आपकी तस्दीक करने लगते तो क्या इसका मतलब ये ना होगा कि उसके घर की हैसियत खत्म हो जाए, उसका इक़्तिदार मिट जाए और बनु उमैया सरदारी के तख्त से गिर जाए? इसका मसला पैगाम की सच्चाई या झूठ से नहीं था, बल्कि इस पैगाम में छुपे उसकी हैसियत के बराह रास्त खतरे से था। ये औरत इस्लाम को महज मजहबी इनकलाब नहीं, एक समाजी जलजला समझती थी जो उसकी तामीर करदा ऐश व इशरत और गुरूर की दुनिया को मिलियमेट कर देगा और लोगों को मुसावात, इंसाफ और ऐसे हुक्म देगा जहां वो सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। इसी तरह उम्मे जमील एक बाअसर औरत से इस्लाम की कट्टर दुश्मन बन गई, जो अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ जोरदार मुहिम चला रही थी। लेकिन अबू लहब अपनी खुली मुखालफत के बावजूद उसके शर की इंतहा तक न पहुंच सका। इस औरत ने सिर्फ इनकार पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम को तबाह करने के लिए वक्फ कर दी। इस फाजिरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की, आपकी शख्सियत को मजरूह करने की सही की और हर उस फर्द को साया दी जो आपके खिलाफ नफरत फैला सकता था। इसके अल्फाज जहर की मानिंद थे जो मक्का की गलियों में रेंगते, महफिलों में सरगोशी होते और काबा के गिरदो नवा में फैलते थे, फितना की आग भड़काते और दिलों में नफरत की तपिश बढ़ाते थे। इसकी जंग महज मजहबी नहीं, वजूदी थी। इस मुजरिमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सच्चे हादी को देखा जो कायम शुदा जाहिली निज़ाम को उखाड़ फेंकेगा और उसके हक में साबित होने वाले तवाजुन को उलट देगा। ये फाजिरा अल्लाह के नूर को बुझाने को हर हरबा इस्तेमाल करने पर तुली हुई थी। पहले पहल तो उसने समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ज्यादा देर नहीं चलेगी और उनके पैरोकार पीछे हट जाएंगे, मगर हकीकत हैरान कुन थी। इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही थी। दिल इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो रहे थे और ये नूर हर लम्हा फैल रहा था। जब उस नापाक औरत ने देखा कि उसकी तमाम तर साजिशों के बावजूद लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो उसकी नफरत इंतहा को पहुंच गई और वो पूरी कुव्वत के साथ अपनी दुश्मनी में निकल खड़ी हुई। चुनाचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग की सरकर्दा कमांडरों में से एक बन गई। उसने कुरैश की खवातीन में अपने असर और रसूख को झूठ फैलाने, इल्जामात लगाने, अफवाहें उड़ाने और अवाम के दिलों में खौफ बैठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके अल्फाज पूरे मक्का में आग की तरह फैलते, जैसे आग लकड़ी को भस्म कर दे। उम्मे जमील ने अपने असर और तुन जबान का फायदा उठाकर झूठ और मन घड़त प्रोपेगेंडे का जाल बुन डाला, जिसके जरिए वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी दावत और मुसलमानों पर हर किस्म के इल्जामात लगाती ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। उसने झूठ बोला, वहम घड़े, बहतान तराशे। उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल, जादूगर, झूठे और मक्का के निज़ाम को तबाह करने वाले हैं, हालांकि वो खुद झूठी, फाजिरा और बहतान तराश थी। इसका मकसद महज गुमराह करना नहीं, बल्कि किसी भी जरिए से रसूलुल्लाह की दावत से लोगों को दूर करना था
खा वो ज़राए कैसे ही हकीर, झूठे या फासिद हों। बाजार के एक ऐसे दिन जहां लोगों की भीड़ जमा थी, उम्मे जमील खड़ी हुई और ऊंची आवाज में चलाई, मोहम्मद तो अपने खानदान को भी तकलीफ देते हैं, मगर वो हमेशा की तरह झूठी थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह सच्चे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों और सब में सच्चाई, अमानतदारी और आला अखलाक के लिए मशहूर थे। नबूवत से पहले भी कभी किसी ने आपकी दयानत पर शक नहीं किया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो यही मुजरिमा, बहतान तराश औरतें थीं जिन्होंने नबी पाक पर बहतान लगाए और बुरे अखलाक का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात में सबसे पाकीज़ा, सबसे बेहतर अखलाक वाले और आला तरीन मकाम व मर्तबे पर फाइज थे। मगर इसकी अदावत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद न रही, बल्कि इसका निशाना वो औरत भी बनी जिसे वो इज्जत व एहतराम में अपना हरीफ समझती थी, सैयदा खदीजा बिन्त खवेलिद रज़ी अल्लाह अन्हा। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा शरीफ, पाकबाज, बुलंद मर्तबा और बाइज्जत खातून थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़ौजा और आपकी पहली हिमायती। वो हर उस चीज़ की नुमाइंदगी करती थीं जिससे उम्मे जमील डरती थीं, इज्जत, वक़ार, साबित कदमी और हिकमत। इसीलिए इस मुफसिद, मुजरिमा और फासिद औरत ने उन्हें तबाह करने की कोशिश की। उसने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मजाक उड़ाया, ख़वातीन को उनका बाइकॉट करने पर उकसाया और उन्हें मुआशरती तौर पर अलग थलग करने की सही की। इसकी नफरत इस हद तक पहुंची कि उसने ख़वातीन को धमकी दी कि अगर वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलती रहें तो उन्हें महफिलों से निकाल दिया जाएगा। लेकिन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आसानी से हार मानने वाली न थी। वो अल्लाह की जानिब से अपने मुंतखब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुनीदा साथी थीं। वो बुलंद हिम्मत, साबित कदम, मजबूत और इस्तकामत की पैकर रहीं। अपने नबी शौहर के पैगाम पर ईमान रखती रहीं, आपके गम में शरीक रहीं और अपनी हिकमत से कुरैश और उसकी फाजिर ख़वातीन की ऐज़ाओं का मुकाबला करती रहीं। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के सब्र और दावत में इजाफे को देखकर उम्मे जमील की नफरत और भड़क उठी। चुनांचे वो ज़बानी दुश्मनी से अमली जंग में उतर आई। उसने नौ मुस्लिमों को खौफजदा करना शुरू किया और कुरैश के सरदारों पर उन पर दबाव बढ़ाने के लिए जोर डाला। वो उन अव्वलीन अफराद में से थी जिसने मुसलमानों के खिलाफ मुआशरती और मुआशी बाइकॉट की दावत दी, जो बरसों तक जारी रहा। चुनांचे उस फासिदा और फाजिरा औरत और उस जैसी औरतों ने मुसलमानों को एक गहरे मुहासरे में ले लिया, जिसने न बूढ़े को बख्शा, न बच्चे को, न औरत को। और उस पर बस नहीं किया, बल्कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में पत्थर और कांटे बिछाती, हर तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती और मक्का के हर कोने में नफरत की आग लगाती रही। मक्का के एक दिन जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, तो उसने अजियत रसानी की इंतहाई घनाउनी शक्ल का इर्तिकाब किया। अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंकी। ये एक ऐसा मंजर था जिसमें हिमाकत की इंतहा थी, जिसका मुकाबला सिर्फ अशरफुल मखलूकात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ही कर सकती थी। इन दोनों फाजिरों ने एक लम्हे के लिए भी पाकीज़ा मकामात को नापाक करने और ज़मीन के सबसे सच्चे इंसान की तौहीन करने में कोई झिझक महसूस नहीं की। इसके बावजूद इस्लाम की दावत फैलती रही, मोमिन बढ़ते रहे और दिल हक के लिए खुलते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से। और यही वो चीज़ थी जो उम्मे जमील को हद से बाहर ले जा रही थी। जब उम्मे जमील की तमाम कोशिशें और साजिशें नाकाम हो गईं और बहतान बेअसर हो गए, तो शैतान ने उम्मे जमील पर एक नया वार किया और उसे एक और रास्ता दिखाया, कत्ल। हाँ, उसने अपने हाथों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वो कोई आम मुखालिफ नहीं, बल्कि इस्लाम की सबसे शदीद दुश्मनों में से एक थी। यहाँ तक कि अल्लाह जल्ल जलालू ने उसे कुरान पाक में बुराई, मजम्मत, शदीद अजाब और तबाही के साथ याद फरमाने के लिए मुंतखब किया, ना कि किसी फजीलत के तौर पर, बल्कि मलून लोगों की फहरिस्त में शामिल करते हुए। इस्लाम के फैलाव के साथ ही उम्मे जमील और उसके शौहर की सरकशी बढ़ती चली गई, मगर वो जो भी करते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वादा टूटने वाला न था, उसका हक मगलूब होने वाला न था और उसके लश्कर नाकाम होने वाले न थे। फिर आसमानी फैसला कुन ज़र्ब लगा। अल्लाह की किताब कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरत नाजिल हुई, जिसमें ज़मीन के बादशाहों या रूम के हुक्मरानों का जिक्र नहीं, बल्कि दो काफिर मर्द औरत का जिक्र हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया,
जिन पर वाज़ेह खसारे और तबाही का हुक्म सुनाया गया। एक दिन नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए और अहले कुरैश को बुलंद आवाज़ से पुकारा। फिर सिद्क़ को अमानत से लबरेज लहजे में फरमाया, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि वादी के पीछे घड़ सवारों का एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सबने बैक आवाज कहा, हाँ, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें आने वाले सख्त अजाब से खबरदार करने आया हूं। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, मुझ पर ईमान लाओ। यानी जो ईमान लाएगा उसके लिए जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और जो इनकार करेगा उसके लिए आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं और अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। जब ये ऐलान सुना गया तो फजा पर खामोशी छा गई। यही खुली दावत का आगाज था। इसी लम्हे शैतान अबू लहब के दिल में छुपी नफरत फट पड़ी और वो चीख उठा, तबाही हो तुम्हारे लिए, क्या तुमने हमें इसी बात के लिए जमा किया था? फिर वो गुस्से में वहां से चला गया। इसी पर अल्लाह ताला की तरफ से लर्जा देने वाला फैसला नाजिल हुआ और कुरान मजीद में फरमाया गया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। सिर्फ 5 आयात, मगर ऐसी कि एक मर्द और एक औरत के लिए रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने हक के मुकाबले में तकब्बुर किया और अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश की। इस सूरत में सबसे नुमायां किरदार अबू लहब की बीवी अम्मी जमील का है, जिसे लकड़ियां उठाने वाली कहा गया। उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। यह महज एक सिफत नहीं, बल्कि उसके पूरे किरदार की तस्वीर है। वो कांटे और पत्थर उठाकर अशरफुल बशर और अकरमुर रुसल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देती थी और लोगों के दरमियान चुगली, फितना और फसाद फैलाती थी। जब उसे इस सूरत के नाजिल होने का इल्म हुआ तो वो आग बगोला हो गई और बेचैनी से भर उठी। वो जान चुकी थी कि उसके और उसके शौहर के अंजाम का हतमी फैसला हो चुका है। वो कुरैश में तमाशा बन गई, हत्ता के सरदार भी उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके पास रद्द अमल में सिर्फ तशद्दुद रह गया। एक दिन उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिद हराम की तरफ लपकी। उसका गुमान था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ तशरीफ फरमा है और वो उस पत्थर से कत्ल कर देगी। मगर जब वो मस्जिद हराम में दाखिल हुई तो हैरानकुन वाकया पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने मौजूद थे, लेकिन वो उन्हें देख न सकी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उसकी निगाहों से ओझल कर दिया था। गोया ये पैगाम था कि जिसके दिल का नूर बुझ जाए उसकी आंखों की रोशनी भी छिन जाती है। वो गुस्से में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुई और चीख कर बोली, तुम्हारा साथी कहाँ है? मैं उसे कत्ल करने आई हूं। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने सुकून से जवाब दिया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ही तशरीफ फरमा थे। मगर अल्लाह ताला ने उसकी नजर फेर दी थी। वो पत्थर फेंक कर नाकाम और मायूस लौट गई। अम्मी जमील दिल ही दिल में जानती थी कि सूरतुल मसद महज अल्फाज नहीं, बल्कि अटले रब्बानी फैसला है। उसने उसके गुरूर, माल और असर को मिटा कर रख दिया। उन्होंने इस्लाम को रोकने की हर कोशिश की, मगर अल्लाह ताला की मशीयत गालिब रही। अबू लहब और अम्मी जमील का अंजाम दुनिया में भी जाहिर हुआ। अबू लहब एक हलाकत खेज बीमारी में मुब्तला हुआ। लोग उससे दूर भागने लगे, यहां तक कि मरने के बाद कोई उसे दफनाने को तैयार ना हुआ। आखिरकार लाश को एक गड्ढे में फेंक कर पत्थरों से ढांप दिया गया। उसकी दौलत, सरदारी और गुरूर सब मिट्टी में मिल गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बाकी रहा और क़यामत तक बाकी रहेगा। उम्मी जमील भी जिल्लत, तन्हाई और रुसवाई में मुब्तला हुई। उसकी चमक मान पर गई, वो नफरत की अलामत बनकर रह गई। यूं अबू लहब और उम्मी जमील की दास्तान महज तारीख नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक दायमी तंबीह बन गई कि अल्लाह के नूर के मुकाबले में खड़ा होने वाला कभी कामयाब नहीं होता। यूं अबू लहब और उम्मी जमील की पूरी जिंदगी इबरत की एक खुली निशानी बन गई। जिन्होंने हक के मुकाबले में तकब्बुर किया, अल्लाह के नूर को बुझाने का ख्वाब देखा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने की कोशिश की, मगर अंजाम ये हुआ कि वो दुनिया में भी जिल्लत का शिकार हुए और आखिरत में भी दायमी खसारे में पड़ गए। जबकि हक बाकी रहा, इस्लाम गालिब रहा और नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क़यामत तक के लिए रोशन हो गया। ये वाक़या हर ज़माने के लिए एक वाज़े पैगाम है कि ताकत, माल और गुरूर कभी अल्लाह के फैसले के सामने नहीं ठहर सकते।
अल्लाह हमें हक को पहचानने, उस पर साबित कदम रहने और बातिल के रास्ते से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे दूसरों तक शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आइंदा ऐसी मजीद सबक आमोज इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।